P. Hello. Hello. Good morning, sir. Morning, Morning. Good morning, sir. Who's first? Good morning, sir. How many students are total? Morning, sir. Good morning, sir. 86. 86. 86 are there or 86 are joined? 86 are okay. 86 are there. 86 are joined. Okay. 85, sir. Rest will join. Good morning, sir. No, sir, this much only. Okay, so let's start. My name is Anuj Kumar Pandey, Assistant Professor in Electrical Engineering at WRT Center. In basic electrical engineering, the last unit is power converters. Sir, can you increase the voice a bit? Sorry? Sir, voice. Okay, voice is not clear. Sir, speak little louder. Okay. In the course of basic electrical engineering, you will be having about one unit called power converters. Okay, have you seen last unit? Yes, sir. Oh, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll be covering that today. Your previous teacher Rakesh sir is not there, not available. So he asked me to continue. After he will come, I'll resume after his course is finished. He is teaching machine, no? DC machines. DC machines. Okay. After he will complete, I will continue this section. Today I will be teaching about power converters. First, see what is power converter. This is basically part of power electronics.
power electronics, where power electronics comes, what is the use of power electronics. So we'll see. Suppose in your home, what is the supply you are getting? Anyone? What is the supply you are getting in your home? AC. AC supply. AC. AC current. AC supply. 220 volt AC. You are charging your laptop. What supply it needs? AC. No, it needs AC, but it has to be converted into something now. Yes, sir. DC. DC. Okay. Battery is there in your laptop or your mobile or any electronic gadget which you are charging. Battery is there. Yes, sir. So electric AC supply needs to be converted into DC. Similarly, in your room, inverter is there. Have you seen? Inverter is there. What inverter is? When electricity is there, it charges the battery. When electricity is gone, it converts that DC into AC. So what is basically use of power electronics? Now for your requirement, you need to know only what are the different converters and all. I will just show. At any point of time, if I'm not audible or not visible anything, please tell me. Yes, sir. In your home, you are getting AC supply? Yes, sir. Okay. You are converting that to DC. Okay. What is this process called? When you are charging your battery, what is this process called? AC to DC? Rectification. Rectification. In power electronics terms, we call these rectifiers or power converters, mainly power converters. Okay. Yes, sir. Rectification. AC to DC. Now, suppose you have 12 volt battery, but you want 48 volt supply. Okay. How you will get that? There is a device called chopper or DC to DC converter. What it is called? Chopper. Or you can call this buck boost converter. Boost converter, buck converter, or buck boost converter. It depends upon configuration what you are using. Okay. Now you just see this. This is chopper. Okay. Suppose you have DC. You want AC. What is this process called? Inverter. Inverter. What device is this? Inverter. Here, rectifier is there. Rectification process is there. The device which gives you AC to DC is called rectifier. DC to DC is chopper. DC to AC is inverter. Now AC to AC. AC to AC is transformer. sorry. Cycle. Transformer. No, not transformer. Yes, transformer is there. But suppose you don't have transformer. You want it to do with power electronics only. Power electronics switches. What is this called? This is called cycloconverter. Cycloconverters. Cycloconverter. AC to AC converter or cycloconverter. Inverters. Okay. Okay. With let me tell you one thing. With transformer, can you change frequency? No, sir. No, sir. No, sir. Actually, frequency is constant in case of transformer. But in this case, when you have AC, suppose 230 volt, 30 volt AC supply of 50 hertz. No? You want 300 volt of AC at 100 hertz. Your transformer cannot do that. But cycloconverter will do that.
Suppose you want out of 230 volt, you need only 115 volt. Your cycloconverter will do. It can change frequency. Either you need 50 hertz or 100 hertz or 25 hertz. Depends upon what is you need. You can change. So what you have understood up to now is we are getting one supply, one type of supply, either AC or DC. What power electronics will do? You can change it into AC to DC, DC to AC, AC to AC with change of frequency. Okay, this is the flexibility of power electronics, that you can change the frequency of AC supply. With transformer, you cannot do. You cannot change frequency. So today in your course, I think this thing is there and this thing is there. In your course, buck boost converter is there. In your course, your syllabus covers buck boost converter and inverter, single phase and three phase inverter. So today I will go with choppers or buck boost converters. Okay. You want to note down this? Shall I erase it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me tell you what is chopper. Okay, or buck boost converter. I'll be telling choppers, DC to DC converters. Suppose you have 10 volt DC. This is voltage. This is 10 volt DC. This is 10. Please note down these things. As I'm writing, you can also note down these things. This is 10 volt DC. Okay. What I was saying, let me first tell you basic principle of chopper. What I want is, suppose 5 volt of DC. Okay, this I want, this I have, this I want. Okay, average. Let me show you the circuit by which we can do. This is our supply voltage. What I have told you, 10 volt. We have 10 volt. This is its circuit. 10 volt DC is available. What I want across the load is 5 volt. How I will do this? This is switch. When the switch is on, can you tell me what is the output voltage across here? When the switch is on, 10 volt. okay, 10 volt. When switch is off, how much voltage?
0. 0. Okay, good. So when switch is on, we will get, suppose for 1 second I am seeing, huh? This is 1 second. 1 second. This is time axis. This is 1 second. Huh? For 1 second, we are turning on the switch. We are turning on the switch. What will be output voltage? 10 volt. Whatever we are giving, it will appear across the load. Now, if we turn off the switch for next 1 second, right, 2 seconds, what will be output voltage? 0. 0. When the switch is off, output voltage will be 0. Yes, sir. What will be average? Here 10 volt, here 0 volts. For 2 seconds, what will be average? 5 volt. 5 volt. What was our requirement? Earlier I had said that I have 10 volt supply, I want 5 volt. What I am doing? Turning on the switch for 1 second and turning off the switch for 1 second. What it will do? It will give average of 5 volts. So average voltage comes out as 5 volt. Okay. Similarly, this will follow for next. This will use output voltage, this is 0, and this will follow. This is T on. This is T off. This is 5 volt. This is total time period. Now suppose we want 2 volt DC. How will you do that? In 2 seconds, how much time I can turn on the switch that we can get 2 volt? सर 1 सेकंड के लिए ऑन करेंगे और 4 सेकंड्स के लिए ऑफ. 1 सेकंड के लिए ऑन करेंगे, 1 सेकंड के लिए ऑफ करेंगे तो 5 वोल्ट आ रहा है ना. 4 सेकंड्स के लिए ऑफ सर. नहीं, एक्चुअली हमको ये टाइम पीरियड, अच्छा ये भी है कंट्रोल का स्ट्रेटेजी है कि टाइम पीरियड हमको कंट्रोल करना है कि फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना है, ठीक. तो ये हम अभी इसके बाद ये करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या हम लोग कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट 2 सेकंड जो हमारा ये टाइम है, ये टाइम कांस्टेंट. अब बताओ कितना टाइम ऑन करना है? इसके लिए आपको क्वेश्चन होता है. where k equals to output voltage equals to K times D. Somewhere you will see alpha. This is actually duty ratio. Duty ratio. Okay, this is duty ratio. T on by T on plus T off. Turn on time divided by turn on plus turn off. Okay, anyone please tell me what will be T on for? Okay, just do one thing. You don't know T on, but you know total time period is 2. V in equals to how much is V? 10 volts. 10 volts. You don't know T on, but you know output voltage. What was there? 2 volt. T on will come as
0.4 seconds. For 0.4 seconds, we will perform this. Have you made this? Please note down this. After that, I will erase it. सर हमेशा टी ऑन प्लस टी ऑफ 2 सेकंड्स ही लेंगे. नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है. ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए समझाया जा रहा है. ये कितना भी ले सकते हैं. बस एक एग्जांपल के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि टी ऑन प्लस टी ऑफ 2 सेकंड ले रहे हैं हम इस केस में. ये 2 सेकंड है हमारा. ओके ओके सर, थैंक यू. तो पॉइंट ये आपने बुक कर लिया. अब क्या होगा अगर हम उसके केस में देखते हैं. सपोज 0.4 सेकंड्स के लिए हम ऑन किए, हमारा टोटल वोल्टेज आएगा कुछ यहाँ पर. ठीक, उसके बाद 1.6 वोल्ट सेकंड्स का ये ऑफ रहेगा. इसका एवरेज वोल्टेज जो आएगा वो 2 वोल्ट आएगा. ये अभी जो ये डिस्कस हो रहा था कि ये 2 सेकंड्स रहेगा, 1 सेकंड रहेगा. चलो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं. इसको कंट्रोल कैसे, ये कर लिया क्या आपने नोट? No, sir. Yes, sir. इसमें कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ. हो गया सर. You are going to upload the screenshot will be provided to you. ठीक, suppose this is T on equals to T on plus T on. Now what are the control strategies? Time ratio control, current limit control. Time ratio control, we will control the ratio of time. Ratio of time is we will control duty cycle. We will change T. We will in one case we will fix T. In another case, this is time ratio control. Constant frequency operation, variable frequency operation. Okay, tell me what is the relation between time and frequency? Inversely proportional. Inversely proportional. So
time and frequency are directly related. When we are changing time, then we are changing frequency. If we are fixing the time, we are fixing the frequency. In this constant frequency operation, okay, see, there are three types of. I'll just tell you because you asked that 2 seconds is fixed. That's why I came to this slide. Suppose you have 12-volt supply. Either you can get below 12 volt or above 12 volt, or what you can do in one circuit, you can get depends upon some conditions, you can get more than 12 volt or less than 12 volt. Okay, these are buck converter, boost converter, buck boost converter. I will tell you those, but before that, first let's see control strategies. What are the control strategies? Time ratio control. This is time. We'll control this. Control this. How will control? I will show you. Next is current limit control. In current limit control, we will not be reading current limit control, but I will tell you. I'll be telling you only time ratio control. इसको सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं कि ये टाइम रेशियो कंट्रोल में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। ठीक, ये हमारा कुछ अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं जो पढ़ा है? Yes, sir. Yes, yes, sir. Sir. Suppose this is our one time event. This is 1 second, 2 seconds, first we are seeing constant frequency operation. Constant this is just basic circuit. I will tell you what is the circuit, how it works. I'm just showing you basic circuit. First, is constant frequency operation. In constant frequency, as its name suggests, frequency is constant. Frequency is constant means time period is constant. Time period is constant. We are not varying time period. Okay, we will be varying only. Suppose this is T on table for 50% time. For 50% time, we are turning on the circuit. For next 50% time, we are turning off. Turning on, turning off. Like this. This is T on. This is T off. In this, this is on time, this is off time. So total time limit is fixed, so frequency is fixed.
how we'll get variable voltage using constant frequency operation. Suppose we are telling for 0.5 seconds हम स्विच को ऑन रख दें, ठीक, 0.5 सेकंड स्विच को ऑफ रख दें, आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? एक साइकिल में 10 वोल्ट इनपुट है, आधा टाइम हम उसको ऑन कर रहे हैं, 1 सेकंड की हम बात कर रहे हैं, आधा टाइम हम उसको ऑन कर रहे हैं, आधा टाइम हम उसको ऑफ कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? 10 5 volt, 5 volt. वो 10 वोल्ट तो उसका इनपुट है ना, what will be 5 our- volt. 5 volt. 5 volt. This is 10 volt maximum. What it is getting for 0.5 seconds. It is 10 volt for 0.5 seconds. It is 0 volt. So total watt it will come as 5 volt. ठीक. अब हम टाइम पीरियड को फिक्स रख रहे हैं ना. अब हम क्या करेंगे? 0.6 सेकंड्स तक ऑन करेंगे. 0.8 सेकंड्स तक ऑन रखेंगे. ओके, 0.8 सेकंड्स तक हम स्विच को ऑन रखेंगे और 0.2 सेकंड के लिए ऑफ कर देंगे. टाइम पीरियड जो है हमारा t = 1 सेकंड, ठीक है. इसमें से t ऑन चेंज हुआ, t ऑफ चेंज हुआ. 0.8 सेकंड तक ऑन रखिए, 0.2 सेकंड तक ऑफ रखिए. आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? 8 volt. 8 volt. 8 volt. So we are controlling the output voltage by controlling time period. Frequency is constant. What we are changing is on time and off time. How much time we are turning on the switch and for how much time we are turning on the switch. इसको नोट कीजिए, फिर आगे मैं एक और आगे बताता हूँ. ये मैं एक्चुअली लर्न करूँगा, नहीं तो इसमें ही बचेगा. सपोज अगर हम 0.2 सेकंड्स के लिए हम स्विच को ऑन रखते हैं, 0.2 सेकंड्स के लिए, यहाँ पे ये 0.2 सेकंड्स, 0.2 सेकंड्स के लिए हम स्विच को ऑन रखते हैं. यहाँ पे 0.2 सेकंड्स तक आउटपुट वोल्टेज आएगा, बाकी टाइम में 0 आएगा. ये आप अलग बनाइएगा, सेम में मत बनाइएगा, बोर्ड में चला के इसलिए मैं बना रहा हूँ. 0.8 सेकंड्स तक, 0.2 सेकंड्स तक यहाँ आ रहा है, 0.8 सेकंड्स तक ऑफ. आउटपुट वोल्टेज कितना हुआ? 2 आउटपुट वोल्टेज हुआ 2 volt. एवरेज आउटपुट वोल्टेज 2 वोल्ट. So time period is constant, frequency is constant, but we are getting variable output voltage. How we are getting that? We are changing on time and off time. Okay, in this case T on plus T off equals to T. This is fixed. Either we are changing T on or T off. It's vice versa. If you are changing T on, T is constant, so T off will automatically change. So for constant frequency operation, this is important. T on plus T off is fixed. Fixed. We are not changing this. Okay, note down this. After that, I will tell you variable frequency operation. सर ये सेकंड वाला ग्राफ फिर से समझाइएगा ना. Sorry, सेकंड वाला ग्राफ. ये वाला यस सर. इसको फिर से करता हूँ. यस सर, एक और बार समझाइए. अभी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये बेसिक सर्किट है. इकलौता नहीं समझ आएगा तो बोलो बड़ा बना के बताओ. सर नहीं, ये समझ आया. ये 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है. इसको हम 50% 10 वोल्ट है. सपोज 1 सेकंड के लिए हम मान रहे हैं कि 1 सेकंड में हम जो स्विच है उसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं. कितना टाइम ऑन करेंगे, कितना टाइम ऑफ करेंगे, उसके ऊपर रहेगा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना होगा. उसमें से सपोज 0.5 सेकंड्स के लिए ऑन किए, 0.5 सेकंड ऑफ कर दिए, तो आउटपुट वोल्टेज हमारा कितना आएगा? एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर 1 सेकंड
बताओ। सर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट तो जब हम ऑन कर रहे हैं 0.5 सेकंड तक, तो सर 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। जब हम ऑन कर रहे हैं 0.5 सेकंड के लिए, तब तो पूरा 10 वोल्ट यहाँ वाला ये शॉर्ट हो गया, तो 10 वोल्ट पूरा का पूरा सोर्स का लोड लिया गया। ठीक, Yes, sir. जब हम ऑफ कर रहे हैं तो ये स्विच ओपन हो गया, आउटपुट वोल्टेज तो 0 हो गया। यस सर। आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, तो आउटपुट वोल्टेज 0 होगा तो हमको ये वाला लाइन मिलेगा। जब हम स्विच को ऑन किए हैं तो ये लाइन मिलेगा, मतलब पूरा 10 वोल्ट मिलेगा लोड के पास। जब हम स्विच को ऑफ कर दिए हैं तो ये वाला लाइन मिलेगा 0 वोल्ट। यस सर। Okay, so जी। in this way we are varying turn on time, sorry, turn on time or turn off time. Actually these two are constant. These two are called total time period. So time period is fixed. So if one is changing, another will change. Please note down this. After that I will go to the next topic. थैंक यू सर। Welcome. किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बता दो। सर एक डाउट है सर, सबसे ऊपर में जो 2 वोल्ट है सर, यहाँ पे है सर, वहीं पे उसमें 2 वोल्ट एवरेज कैसे हुआ सर, वही नहीं समझ में आ रहा 2 वोल्ट एवरेज कैसे हो? है सर। इसका आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन होता है V out equals to P on by P on plus P off, और इसको हम लिख सकते हैं T। इस टोटल टाइम को लिख सकते हैं हम T। दिख रहा है बड़ा करके बताओ। ओके सर। दिख रहा है बड़ा करके बताओ। नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। इनपुट वोल्टेज हमारा कितना है? 10 वोल्ट है सर। तो यहाँ पे लिख लो, ये चीज मैं लिख रहा हूँ, ये आउट इनपुट वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट। 2 सेकंड के लिए ऑन किए, है सर। 2 सेकंड के लिए ऑन किए, और सॉरी 0.2 सेकंड के लिए, और Yes, 1 सेकंड टोटल जो टाइम पीरियड है 0.2 डिवाइड बाय 0.2 प्लस 0.8। देखो कितना आ गया? है सर, समझ में आ गया। 2 वोल्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक चलो। यस सर। सबका हो गया ये? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसमें एक और चीज है, करंट लिमिट कंट्रोल। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का एक करंट लिमिट कंट्रोल है। आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, जस्ट बेसिक आइडिया दे देता हूँ क्या होता है ये। अगर कंट्रोल स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं पता होना चाहिए कि है क्या है। अभी ये जो हमारा सर्किट था, इस कलर में दिख रहा है सबको? Yes, sir. ये हमारा बेसिक सर्किट था BS, ये हमारा लोड था। यहाँ कुछ आई आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। जब हम ऑन करेंगे, अगर हम RL नेटवर्क की बात करें, करंट का बिहेवियर कैसा होगा? करंट का बिहेवियर कैसा होगा? जब ऑन होगा करंट बढ़ेगा,
जब ऑफ होगा तो करंट घटेगा। ये आपने देखा होगा ना ऐसे सर्किट्स में। भूल गए, ऑन होगा करंट बढ़ेगा, ऑफ होगा करंट घटेगा। तो आई मैक्स, आई मीन मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें पीडब्ल्यू पल्स विद मॉड्यूलेशन कंट्रोल था हमारा पहला वाला। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में हम करंट सेंसर्स लगाते हैं कि सपोज अगर हमारे सर्किट में 12 वोल्ट जाएगा तो हमारा स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा। अगर हम करंट के टर्म्स में बात करें, सपोज 10 एम्पियर्स अगर हमने फिक्स किया हुआ है कि 10 एम्पियर्स जब करंट सर्किट में पहुंच जाएगा उतने टाइम पे स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, हमको 10 एम्पियर से ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये हम फिक्स कर देंगे 10 एम्पियर में, और ये हम सपोज फिक्स कर दे रहे हैं 8 एम्पियर में। 8 एम्पियर से कम जब करंट जाएगा तो हमारा स्विच ऑन हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे जो करंट जा रहा है आई आउट, इसको हम सेंस कर रहे हैं कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम जा रहा है। अगर हमारा हमने सेट किया है कि 10 एम्पियर पे जाए तो स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। ऑफ हो जाना चाहिए तो करंट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमने फिक्स किया कि 8 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही 8 एम्पियर देखेगा तो फिर से स्विच को ऑन कर देगा, फिर से हमारा करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हम इसमें कंट्रोल करते हैं। ओके, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट बेसिक आइडिया के लिए मैं बताया। मैं पढ़ाता हूँ जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं है। One second. DC but converter. ओके, DC बक कन्वर्टर पहला टॉपिक आपका। This is switch. This is L. This is DC buck converter. Please note down the circuit. Can you tell me what is switch? What device we are using? अभी तक आपको मैंने पढ़ा नहीं होगा शायद, पहले मैं आपको स्विच बता देता हूँ। शॉपर्स। गुड, जो ही बताया चॉपर्स एक्चुअली पूरे सर्किट को ही बोल देते हैं कि चॉपर सर्किट ही है, DC बक कन्वर्टर है। इसमें अगर हम ये जो स्विच है ना, अगर हम स्विच में थायरिस्टर यूज करते हैं, थायरिस्टर, तो इसको चॉपर बोलते हैं। ओके, अगर हम इसके अलावा कोई और डिवाइस यूज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा, कोई और डिवाइस मतलब क्या यूज कर सकते हैं, कोई बताएगा? एनी सजेशंस?
Relays. Relays are a combination of electromagnetic devices. बताओ। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है? इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स? No sir. No, sir. Basic electronics. No, sir. No, sir. अभी तक तो नहीं हुआ। ये सब MOSFET, IGBT, ये सब पढ़े? BJT? No, sir. 12th में पढ़े No, थे sir. क्या sir? अभी तक नहीं। नहीं, मैं इसलिए बीटेक में अभी भी पढ़ाया जाऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ, आपने 12th में पढ़ा था ना? हाँ सर, BJT 12th में पढ़े थे। ना BJT नाम है ना? BJT क्या है? BJT क्या था कि कुछ इस टाइप का सर्किट होता था। ये कलेक्टर ना, इससे होता था। इसमें क्या होता था, जब हम इधर से इधर सप्लाई, ये वाला जंक्शन हम ऑन करते थे, PNP जंक्शन होता था, PNP। 12th में हट गया था ना सर सिलेबस से। ये नहीं पढ़े सर, हम लोग के टाइम सिलेबस में नहीं था ये। हटा दिया था, CBSE कैंसिल कर दिया था। ये आप फिर से पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ाया जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट नेम बता देता हूँ। इसके थायरिस्टर की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं? BJT। हमको स्विच मतलब जैसे घर में स्विच लगा है फैन का, स्विच से हम क्या करते हैं? ऑन ऑफ। इसको ऑन किए, ऑन करेंगे तो सर्किट कनेक्ट हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बस इतना ही है। थायरिस्टर में क्या है कि थायरिस्टर सेल्फ टर्न ऑफ नहीं होता। मतलब अगर हम एक बार ऑन कर दिए ना, उसमें सप्लाई दे रहे हैं, तो जब तक सप्लाई रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा। तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन हाई पावर रेटिंग्स में ये यूज होता है। किलो वोल्ट्स, किलो एम्पियर्स वगैरह में सबसे ज्यादा जहां पावर यूज होता है उस चीज में थायरिस्टर यूज करते हैं। लो पावर में अगर हम बात करेंगे, नॉर्मल 12 वोल्ट, 48 वोल्ट और 110 वोल्ट, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड्स कि हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होगा। जैसे BJT है, IGBT है, MOSFET का नाम सुना होगा आपने? यस सर। ना, हम मेनली क्या यूज करते हैं, इसमें MOSFET यूज करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि इन दोनों के बीच का पावर इसका है, IGBT और थायरिस्टर का। मतलब पावर हैंडलिंग, सपोज अगर MOSFEट का किलोवाट्स में है, इसका वाट्स में है, तो ये हंड्रेड्स ऑफ वाट्स में होगा। ठीक, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसका कम होता है, क्योंकि ज्यादा पावर जो हैंडल करने वाले डिवाइसेस होते हैं उसको बहुत तेजी से ऑन ऑफ नहीं किया जा सकता। ठीक है, बहुत जल्दी ऑन ऑफ नहीं किया जाता है। घर वाला स्विच में तो अलग होता है ना, कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर या 16 एम्पियर एसी बस हम आ रहा है, तो वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे है क्या, किलो एम्पियर में बात होती है। तो स्विच ऑन बहुत तेजी से और स्विच ऑन बहुत तेजी से नहीं किया जा सकता अगर हम ज्यादा पावर की बात करें। तो इसीलिए मीडियम पावर में MOSFEट यूज करते हैं। इसमें स्विचिंग, इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा होता है। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको जल्दी जल्दी टर्न ऑफ करना है, स्विच को डिस्कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। इसके लिए हम इसमें MOSFEट यूज करेंगे। ठीक, ये रहा स्विच का। अब देखते हैं सर्किट कैसे काम करता है। ये हमारा BS, ओके, ये हमारा BS। देखो मोड 1, अलग अलग मोड में समझता हूँ, इसको आप साथ में नोट डाउन करते चलेगा ना, तो बहुत बाद में वेट करना पड़ता है। मोड 1 में क्या है, स्विच हमारा ऑफ। चलो हम ऑन करके ले लेते हैं। मोड 1 में स्विच हमारा ऑन है, स्विच इज ऑन। सर्किट कैसा हो जाएगा, इस तरीके का सर्किट हो जाएगा।
ओके ये मैं आपको वोल्टेज जितना सर जितना इसमें हम लोग रिवर्स बायस का वोल्टेज VS से कम ले रहे हैं। किसका रिवर्स बायस का वोल्टेज सर, वो डायोड वाला। डायोड का रिवर्स बायस, इसको फॉरवर्ड बायस कितना चाहिए? तो अभी तो हम रिवर्स ले रहे हैं क्योंकि हम पॉजिटिव कर रहे हैं, यहाँ पर इसलिए तो रिवर्स बायस हो गया ना। डायोड यस सर। डायोड में जब इधर पॉजिटिव लगाएंगे इधर नेगेटिव लगाएंगे तब ये ऑन होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लगा रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव लगा रहे हैं। ठीक, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, this is plus, this is minus, so it will be turned off. You can open it, remove it, better. यस सर। This will be circuit. हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? जो वोल्टेज हम यहाँ पे दिए हैं ये RL है। जितना हम सोर्स में वोल्टेज दिए हैं उतना ही हमारा लोड के अक्रॉस वोल्टेज आता है। ओके, सोर्स में वोल्टेज जो दिए हैं वही हमारा लोड के अक्रॉस आ रहा है। ये सपोज T/2 टोटल टाइम पीरियड ये T है। T/2 टाइम तक हमने स्विच को ऑन किया। मोड 2 क्या होगा? स्विच इज ऑन, व्हेन स्विच इज ऑन Vs इक्वल्स टू V out equals to Vs. When switch is on, V out equals to Vs. Okay, you can make out. यस सर। फिर मोड 2 का देखते हैं। मोड 2 में क्या है? स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है तो सप्लाई डिस्कनेक्ट होगा। ये सही है लेकिन ये डिस्कनेक्ट है। इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है, अच्छा इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? ये इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है? L di/dt। तो इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसके अक्रॉस करंट तुरंत चेंज नहीं हो सकता। वैसे अगर हम इस केस में देखें तो इस केस में क्या है? पहले वाले केस में क्या था? यहाँ से पूरा करंट फ्लो कर रहा है। अभी क्या हुआ? ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये करंट इसमें फ्लो करेगा, लेकिन फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू। ठीक है, ओ अच्छा, करंट इसमें फ्लो करेगा लेकिन फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू। लेकिन आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा? वी आउट क्या हो जाएगा? डायोड अगर आइडियल हम मान रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट हो गया। डायोड अगर हम आइडियल मान रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब जीरो वोल्टेज हो गया। ऐसा नहीं? यस सर। जीरो वोल्टेज हो गया तो आउटपुट में हमारा वोल्टेज क्या आएगा? जीरो LDI/dt। सर लेकिन इसके पास आएगा क्या बोलेंगे इसको? जीरो वोल्टेज आएगा आउटपुट में। जब हमने स्विच को ऑन किया था पूरा वोल्टेज जितना सोर्स वोल्टेज था उतना ही इसके आउटपुट में अपीयर हो रहा था। ये मैं इसलिए बता दिया हूँ, आप दूसरे में भी बना सकते हैं। ये एक्चुअली मैं दूसरा भी और टाइम पीरियड कम ज्यादा करके दिखाऊंगा, इसलिए मैं बता दिया दूसरा। ठीक है, कर लीजिए अलग से कर लीजिए। टी ऑन
off. This is total temperature. This is the out. So here we are. T on अगर आपको याद हो हम इसमें अगर इसमें हमको वोल्टेज निकालना है आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे VS को इंटीग्रेट करेंगे वैसे इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते VS को इंटीग्रेट करेंगे 0 to t तो उसमें क्या होगा 0 to t/2 तक t ऑन होगा इसके बाद ये ऑफ होगा तो t on by t on plus t off होगा टोटल V out equals to t on by t into V where t is t on plus t off इसको ये क्वांटिटी को अल्फा से भी डिनोट करते हैं के से भी डिनोट कर सकते हैं ये मैं मिटा दे रहा हूं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं मिटा दो Yes. T on by T इसको अल्फा से भी डिनोट करते हैं कोई के से डिनोट करते हैं डिपेंड्स मतलब जो आपको कन्वीनिएंट लगे वो डिनोट कीजिए बस इसको लिख देना यहाँ जो भी है ड्यूटी साइकिल बोलते हैं इसको ड्यूटी साइकिल और ड्यूटी रेशियो अच्छा इसका वैल्यू कितना होगा अल्फा का कहां से कहां तक आइडियली हो सकता है सर उधर क्या लिखे दिख नहीं रहा है 0 से लेकर सर 0 से 1 ये है ड्यूटी रेशियो ये कहां से कहां तक हो सकता है 0 से 1 सर सर 0 से 1 आइडियली 0 से 1 तक हो सकता है आइडियली मतलब 0 लेकिन आइडियल तो कुछ होता नहीं अगर हम सपोज स्विच ऑन कर रहे हैं तो आइडियली कुछ तो वो टाइम लेगा आइडियल तो होगा नहीं कुछ टाइम लेगा टर्न ऑन टाइम ठीक और जब हम ऑफ करेंगे तो ऑफ होने में भी कुछ टाइम लेगा टर्न ऑफ टाइम तो 0 और 1 तो एग्जैक्टली नहीं होता है लेकिन 0 से 1 के बीच में होता है ठीक ये अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है लिखिए इसको ड्यूटी रेशियो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं अगर आते हैं ना एकदम इजी न्यूमेरिकल लगता है कि इतना सप्लाई वोल्टेज इतना है इतना टाइम या इतना आउटपुट वोल्टेज है इसका टाइम पीरियड कितना होगा ऑन टाइम कितना होगा ऑफ टाइम कितना होगा सिंपल ये वाला अगर आप याद रखिएगा हो जाएगा सिंपल किसी को नहीं समझ में आया किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ ठीक है समझ में आया नेक्स्ट में चलो यस सर सर मिटा दो इसको ये हम क्या देखें डीसी डीसी बक कन्वर्टर बक कन्वर्टर मतलब जो हमारा आउटपुट वोल्टेज था उससे कम वोल्टेज आ रहा है अगर हम यहाँ एवरेज देखेंगे
एवरेज कुछ किया है ना या ठीक, एवरेज वोल्टेज मतलब आउटपुट वोल्टेज आउट इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स V in V is ये 0 to 1 के बीच में है, सपोज अगर 0.5 है, अगर ये 12 वोल्ट है तो ये 6 वोल्ट होगा। सिमिलरली 8 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट 6 वोल्ट जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप कर सकते हैं। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो आएगा हमेशा सर इससे तो कम आएगा। सॉरी सर इससे सर वोल्टेज इससे तो एम्पलीफाई नहीं कर पल्सेटिंग सकते कैसे ना? क्रिएट होगा ना लोड से? हाँ पल्सेटिंग नहीं है। अच्छा अभी वही सर, तो एक कैपेसिटर अगर लगा देंगे हाँ लोड पे सर, एक कैपेसिटर लगा देंगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना? बात आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हमको क्या है कहीं भी अगर पल्सेटिंग में आप वोल्टेज फिक्स करेंगे तो कैपेसिटर उसके पैरेलल लगा देंगे तो क्या होगा, वो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है वो जल्दी से वोल्टेज चेंज नहीं करता। तुरंत से कनेक्ट नहीं कर सकता, डी से जल्दी से चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अभी आपको क्या करना है ना, सिर्फ सर्किट जानना है हमको क्या है, मतलब आपके इसमें फिर ये ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक अलग कोर्स है, ये मॉड्यूल है, ऐसे 5 मॉड्यूल है, पांचों मॉड्यूल में अलग से मतलब ये पढ़ना ही जस्ट इंट्रोडक्टरी चीज है, इसलिए बस नहीं पता है। अच्छा नेक्स्ट है बूस्ट कन्वर्टर। हाँ ये बक कन्वर्टर में हम क्या किया, जितना वोल्टेज हम दिए आउटपुट में हमारा उससे कम है, ठीक है। बक कन्वर्टर बूस्ट कन्वर्टर में क्या होगा, जितना हम सपोज 12 वोल्ट दे रहे हैं, 12 वोल्ट दे रहे हैं, आउटपुट में हमारा उससे ज्यादा है। बक बूस्ट में क्या होगा, अच्छा 3 टाइप का होता है ना, जो बक बूस्ट होता है सर्किट, मतलब सर्किट में दिखाऊंगा, उसमें क्या होगा कि हम उसे 12 वोल्ट है तो उसे हम 9 वोल्ट भी ले सकते हैं और 18 वोल्ट भी ले सकते हैं, मतलब वोल्टेज को हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। So we'll see. DC boost कन्वर्टर। इससे केस में आपको याद होगा स्विच हमारा यहाँ पे था, इंडक्टर यहाँ पे था और डायोड यहाँ पे था, बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स जो हमारे लगने हैं वो सेम है, बस कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। अच्छा पिछली बार मोड 1 में क्या हुआ था, मोड 1 में हम स्विच को ऑन कर रहे थे, जितना हमारा आउटपुट वोल्टेज था पूरा जा रहा था, जितना आउटपुट पे जितना इनपुट वोल्टेज था। अभी हम अगर स्विच को ऑन करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ऑन करेंगे तो 0 से। हाँ अगर हम स्विच को ऑन करते हैं आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, जीरो, आइडियली जीरो, शॉर्ट सर्किट।
लेकिन होगा क्या, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जब स्विच ऑन हुआ तो Vs का जो एनर्जी है इंडक्टर में स्टोर होगा। ये V dt से इसके हो जाएगा, Vs इक्वल टू VL हो जाएगा। यस सर। ठीक, अब हम जब स्विच को ऑफ करेंगे, सपोज हमारा यहाँ 12 वोल्ट था, मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज, मान लो, मतलब मैं एक रफ वैल्यू बोल रहा हूँ, डेफिनेटली भी नहीं लिखना हो, मान लो ये हमारा 6 वोल्ट से चार्ज हो, ठीक है, ये 12 वोल्ट था, ये 6 वोल्ट से चार्ज हो। अब हमने क्या किया, स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच को ऑफ किया तो इस मोड में क्या होगा, इससे करंट होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है बताओ, आउटपुट वोल्टेज मोड 2 में 6 वोल्ट 6 वोल्ट नहीं है, 12 प्लस 6 18 वोल्ट। हमको क्या चाहिए, जितना हमारा इनपुट वोल्टेज है उससे ज्यादा हमारा आउटपुट वोल्टेज है, वही हो रहा है ना। पहले सिर्फ एक सोर्स की तरह काम करता था, अभी क्या होगा, ये और ये दोनों ही सोर्स की तरह काम करेंगे लोड के लिए, जो हमारा लोड है। तो आउटपुट वोल्टेज, यस सर। आउटपुट वोल्टेज वो हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम करंट के टर्म्स में बात करें, अगर हम करंट के टर्म्स में बात, अच्छा पहले मोड में किसी ने ये नहीं पूछा कि ये तो ये अगर ऑन है तो इधर से, क्योंकि अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, डायोड है, रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करने से। सर एक बार फिर से समझाइए सर, एक बार फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया। अच्छा ये समझ में नहीं है आपको, नहीं आया सर। अलग से मोड बनाना, फिर आपको बात करेंगे। हाँ बोलो, रिडंडेंसी नहीं तो कैसे बोल रहे हैं, नेक्स्ट नया दीदी का वाईफाई चल क्या कोई नहीं बता। ठीक, ये हमारा इनपुट सोर्स वोल्टेज, ये कौन बात कर रहा है, बात कर सोर्स वोल्टेज Vs इक्वल्स टू, सपोज 12 वोल्ट है, हमने इनपुट में 12 वोल्ट दिया, ठीक, मोड 1 में क्या करते हैं, नहीं यार बात नहीं करते, जो भी करते हैं हंसने आ दीदी। 12 वोल्ट इनपुट में, मोड 1 में हम क्या कर रहे हैं, स्विच को ऑन कर रहे हैं, मोड 1 स्विच इज ऑन, स्विच ऑन है तो ये सर्किट होगा, मतलब ये ठीक,
जब स्विच ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? स्विच ऑन है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया? 0। आउटपुट वोल्टेज हो गया 0। जो L है वो जो हम जितना भी सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं GS VL, VL क्या होगा? L di/dt। इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया L di/dt। जितना वोल्टेज दिए थे वही इसके अक्रॉस अप्लाई किया, ये चार्ज हो गया। वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना होगा? L di/dt। अब मोड 2 में हम क्या कर रहे हैं? मोड 2 में हम स्विच को ओपन कर दे रहे हैं, मतलब ऑफ कर दे रहे हैं। तो इंडक्टर के अक्रॉस VL, इंडक्टर के अक्रॉस कुछ वोल्टेज, ठीक, BS, ये हमारा सर्किट होगा मोड 2 में। मोड 2 S ऑफ मतलब ये ओपन होता है, ठीक। जो हम वोल्टेज दे रहे हैं ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई होगा। इसमें हम KVL लगाएंगे तो क्या होगा? Vout = VL + VS। सर इंडक्टर में वोल्टेज का पोलैरिटी कैसे चेंज हुआ? हाँ, इंडक्टर में वोल्टेज का पोलैरिटी कैसे चेंज हुआ? सोर्स और सिंक का कांसेप्ट जानते हैं? सोर्स और सिंक नहीं पता सर। अच्छा, सोर्स एक्चुअली क्या होता है? सोर्स मतलब जब कोई भी, जैसे इंडक्टर है, अब मैं मतलब 2 इंडक्टर के उसमें जब ये चार्ज हो गया ना, जब इंडक्टर चार्ज हो गया, यस सर, तो ये अपना मैक्सिमम जितना वोल्टेज ये या जितना करंट इसको एक्चुअली ये करंट के टर्म्स में स्टोर करता है, जितना स्टोर करना था कर चुका है, इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज पहुंचना था L di/dt से पहुंच चुका है, ठीक, सैचुरेट हो गया, करंट इसके अक्रॉस अब चेंज नहीं करेगा। तो अब ये क्या करेगा? इसका टेंडेंसी क्या होगा? एक बार चार्ज होगा तो मतलब अगर उसको मौका मिलेगा तो डिस्चार्ज होगा। ये अगर सपोज 12 वोल्ट से चार्ज करता है, 10 एम्पियर्स करंट ये स्टोर कर चुका है और 10 एम्पियर करंट से सप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो चुका है, इतना एनर्जी होता है कि 10 एम्पियर से कर सकता है सप्लाई। तो जब इसको मौका मिलेगा कहीं भी सप्लाई करने का तो ये सप्लाई करेगा, अपना भी करेगा। तो करंट के टर्म्स में ऐसे वोल्टेज के टर्म्स में देखो सर ये जो 12 वोल्ट चार्ज हुआ इसका पोलैरिटी क्या था? हम बता रहे हो, देखो ये देखो प्लस माइनस, ये 12 वोल्ट था, ये 12 वोल्ट था, पोलैरिटी ये होगा। अभी भी करंट का डायरेक्शन जो होता है, अगर सोर्स है ना, सोर्स देखो जैसे हम इसके टर्म्स में बात कर रहे थे ना, यहाँ देखना ऊपर VS के टर्म्स में बात कर रहे थे, करंट कैसे फ्लो कर रहा था ऐसे, यस सर, ठीक है। पॉजिटिव, जब कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल से, किसी के भी पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकल रहा है इसका मतलब वो सोर्स है। अगर नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है उसका मतलब सिंक है। अगर नेगेटिव टर्मिनल से इन कर रहा है और पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से इन हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से आउट हो रहा है, इसका मतलब ये सोर्स की तरह काम कर रहा है। ऑब्वियसली सोर्स हम ये सोर्स लिए, सोर्स वोल्टेज, इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से इन करेगा और नेगेटिव टर्मिनल से आउट होगा। ये सिंक की तरह बिहेव करता है तब तक जब तक ये चार्ज नहीं हो जाएगा। यस सर, ठीक, जब ये चार्ज हो जाएगा और ये हमने इसको ओपन कर दिया, ये एज अ सोर्स बिहेव करेगा, एज अ सोर्स बिहेव करेगा। तो सोर्स का जब हम देखेंगे तो एज अ सोर्स में पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलता है, इसीलिए हम इसको प्लस और इसको माइनस करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस, देखो इसका अच्छा KVL लगा लो, देखो कैसे होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो इसके इस टर्मिनल से करंट इन करना है। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं ना, यहाँ से KVL लिखो तो इस रूप में, यहाँ से
क्या लिखेंगे इसको, बोलो केवीएल बोलो तो VS प्लस VL माइनस VS सॉरी V out इक्वल्स टू 0। ठीक, V out इक्वल्स टू VS प्लस VL। ठीक है सर पोलैरिटी इंस्टेंटेनियसली चेंज हो जाएगा। पोलैरिटी ऐसा पोलैरिटी नहीं चेंज होता है, एक्चुअली इसका प्रॉपर्टी है कि जब ये स्टोर किया है ना तो अब ये क्या करेगा, रिलीज करेगा अपना एनर्जी जो स्टोर है ना उसको रिलीज करेगा। जब ये चार्ज हो जाएगा उसके बाद ही इसका पोलैरिटी चेंज होगा। जब तक ये सोर्स की तरह, जैसे अगर मुझे कुछ डोनेट करना है तो पहले मेरे पास होना होगा। पहले अगर मान लो किसी को 100 रुपए देने हैं तो पहले मेरे पास 100 रुपए होने होंगे, उसके बाद मैं दूंगा। जब मेरे पास कुछ पैसे होंगे तभी मैं दूंगा। जब इसके पास जो इसका रिक्वायर्ड अमाउंट है, सपोज अभी के लिए मैं अगर 10 वोल्ट बोल रहा था तो 10 वोल्ट जब होगा उसके बाद ही अपना पोलैरिटी चेंज कर सकता है। और ये 10 वोल्ट होने के बाद ना ये मतलब एक लिमिट तक स्टोर होगा, उसके बाद एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। इस मैक्सिमम जितना एनर्जी स्टोर करना होगा उतना स्टोर करेगा। उसके बाद ये क्या है, एज अ सोर्स बिहेव करेगा। उसके बाद एज अ सोर्स बिहेव करेगा। जब ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो इसका पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है इसका करंट, देखो एक और चीज देखो, एक फ्रेश देखो ना, पोलैरिटी हम किस चीज से रिलेट करके बना रहे हैं, देखो प्लस माइनस VS। ठीक, अभी क्या था, पहले क्या था, प्लस माइनस था। मोड 1 में क्या था, प्लस माइनस था ना सर। हाँ देखो प्लस माइनस था और इधर का सर्किट ठीक है जो भी है उसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ से देखो, इंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है कि ये अपने अंदर करंट को तुरंत चेंज नहीं करने देता। यस सर। ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा था, जब हम स्विच को ऑन किए थे तो यहाँ से फ्लो हो रहा था, स्विच ऑन था तो ऐसे फ्लो हो रहा था यहाँ से। यस सर। ठीक है, ये लेकिन इंडक्टर अब ऐसा नहीं है, स्विच को ऑफ कर देंगे तो इंडक्टर अपना करंट नहीं चेंज करेगा, तुरंत उसका करंट चेंज नहीं होगा क्योंकि अब ये इस डायरेक्शन में था तो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा था वो करंट फ्लो करेगा, आगे जाएगा, लेकिन इसका अब ये क्या होगा, सिंक की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये सोर्स के अभी तक क्या कर रहा था, ये इससे एनर्जी ले रहा था, लेकिन अभी क्या है, सपोज इसके पास 500 रुपए थे, इसके पास 400 है, एक गरीब आदमी में आ गया जिसके पास कोई रुपया नहीं है, ये दोनों ही मिलकर इसको देंगे। करंट इसी डायरेक्शन में रहेगा, करंट नहीं चेंज होगा। पोलैरिटी क्यों मैं चेंज दिखा रहा हूँ, पोलैरिटी इसलिए चेंज दिखा रहा हूँ क्योंकि एज अ सोर्स बिहेव करने लगा है। यस यस सर, समझ में आ गया। करंट सेम जा रहा है, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं है, सिर्फ पोलैरिटी में इसलिए चेंज दिखा रहा हूँ क्योंकि ये एज अ सोर्स बिहेव कर रहा है। आप लोग का नेक्स्ट क्लास कितने बजे से होता है? आज एक ही क्लास है। अभी केमिस्ट्री होगा सर बोले थे कि 11 बजे तक का है, उसके बाद केमिस्ट्री होगा सर, केमिस्ट्री होगा सर, हम लोग का मैकेनिकल केमिस्ट्री होता है सर, केमिस्ट्री। हाँ सर, केमिस्ट्री है अभी हम लोग का। हम लोग निकले सर तब क्लास खत्म। हाँ ठीक है, ये मैं अभी जब ये राकेश सर डीसी मशीन पढ़ा रहे हैं ना, जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं ये चीजें और कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, मैं ही पढ़ाऊंगा ये चीज। हम लोग का केमिस्ट्री तो नहीं होता। केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, कन्वर्टर पढ़ाऊंगा। सर वो लोग मैकेनिकल वाला है। बाकी लोग का, बाकी ब्रांच का भी हाँ ठीक केमिस्ट्री है, है सर। जो हो जा सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। टाटा नमक। हाँ तो सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
तो आप लोगों का क्लास अभी कंटिन्यू होगा या कहीं और होगा? सर यहीं पे होगा, केमिस्ट्री होगा सर। अच्छा सर, नहीं है